Hello, learners, and welcome back to your own channel, LIY English. Learn it yourself. So, today we are going to learn the third poem of class 11th English of Maharashtra State Board 2.3. There is Another Sky, which is a short, simple, and inspirational poem by Emily Dickinson. We'll learn the poem in detail, line by line, both in English and Hindi. But first, let us know more about our poetess, Emily Dickinson. She was an American poet of the 19th century. She lived a lonely life. Most of her poems are motivational and philosophical. They are unique to her era and are characterized by simple and short lines. She often used slant rhymes and unconventional capitalization and punctuation. Her poems are the psalms and hymns of life in all its shades. एमिली डिकिंसन 19वीं सदी की अमेरिकन पोइटिस थी. उन्होंने अपना जीवन काफ़ी अकेले जिया. उनकी ज़्यादातर पोएम्स मोटिवेशनल और फिलोसफिकल है. उनकी पोएम्स उनके युग की यूनिक पोएम्स हैं जिनकी खासियत छोटी लाइंस और उनकी सादगी है. एमिली ने अक्सर अपनी पोएम्स में स्लांट राइम्स और अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन का यूज़ किया. उनकी पोएम्स में ज़िंदगी के हर रंग और हर गीत मिलते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम देयर इज़ अनदर स्काई. It is an inspirational poem with a message of never say die. It is a Petrarchan sonnet with an octave and a sestet. What is a Petrarchan sonnet? Learners, a Petrarchan sonnet is a 14 lines poem divided between two stanzas called the octave and a sestet. Octave is the first stanza of a poem comprising of 8 lines, and sestet is the second stanza of the poem comprising of 6 lines. So the poem we are going to learn is a Petrarchan sonnet in that sense. In this, the poet is communicating to her brother through a letter. It is believed that her brother, named Austin, lived in Boston away from their home at that time. She wrote a letter to her brother and attached this poem with the letter. In the poem, she encourages her brother to not get depressed under any circumstances and pleads to him to return home. Life is full of challenges. One can tackle the challenges with a positive attitude. The poem ends on an optimistic note. The brighter garden stands for choices that life offers to all. There is Another Sky एक इंस्पिरेशनल पोएम है जो हमें कभी ना हार मानने का संदेश देती है. ये एक पेट्रार्कन सोनेट है. नौ बच्चों, पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है? ये एक खास तरह की पोएम होती है जो सिर्फ 14 लाइनों की होती है और ये 14 लाइनें 2 स्टैंजाज में डिवाइडेड होती है. फर्स्ट स्टैंजा को कहा जाता है ऑक्टेव क्योंकि ये 8 लाइनों का होता है और सेकंड स्टैंजा को कहा जाता है सेस्टेट और ये 6 लाइनों का होता है. तो इस तरह से देयर इज अनदर स्काई एक पेट्रार्कन सोनेट है. पोएटिस ने ये पोएम अपने भाई को एक लेटर के साथ भेजी थी जो कि उस वक्त घर से दूर बॉस्टन में रह रहे थे. वो अपने भाई को किसी भी हालात में उदास ना होने की और उम्मीद ना खोने की प्रेरणा देती है और उससे घर लौट आने की विनती करती है. ज़िंदगी चुनौतियों से भरी हुई है और पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है और जीता जा सकता है. पोएम एक आशावादी यानी ऑप्टिमिस्टिक नोट पर ख़त्म होती है. ब्राइटर गार्डन का मतलब होता है ढेर सारे विकल्प, चॉइसेस जो ज़िंदगी हमें देती है. आइए अब पोएम को डिटेल में पढ़ते हैं. आपके रेफरेंस के लिए हमेशा की तरह मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग स्टैंजा के नीचे दिए हुए हैं. फर्स्ट आई विल रिसाइट द स्टैंजा देन एक्सप्लेन देम इन डिटेल लाइन बाय लाइन इन इंग्लिश एंड हिंदी. लेट अस बिगिन. देयर इज़ अनदर स्काई एवर serene and fair, and there is another sunshine, though it be darkness there. Never mind faded forest, Austin, never mind silent fields. Here is a little forest whose leaf is evergreen. The poem has been interpreted differently by different people, as it is the beauty of poetry. One can interpret the poem according to his or her own imagination and understanding. So we'll try to understand the poem with our own perspective. So here we see that the poem begins with a line which became the title of the poem itself. The poet says that there is another sky. Here, sky represents the endless opportunities and choices that life has to offer. She says that the sky is ever serene and fair. It is calm. It is full of hopes and choices. She says that there is another sunshine in the sky, which represents life.
even though there might be darkness where you are. The poet here is directly addressing to the brother Austin, and she says, "Ke where you are, there might be some problems, there might be darkness, but do not take it as life. It is not the end of life, and it is not all that you have got." She says that there is another sky, there is another chance, there is another sky which is serene and fair, and there is another sunshine. It might be darkness there where you are. Here we can assume that maybe the brother is suffering with some problem, he's having some problems, or he's struggling, so that is why maybe he can be upset. So the poetess is trying to cheer him up, and the poetess is trying to encourage him, saying that you might be feeling that it is all dark over there, but it is not the end of the world. She is talking about a sky, she is talking about a world where there is sunshine, and it is not dark. Then she continues to say that never mind faded forest, Austin, never mind silent fields. So here, poetess is directly referring to the brother with his name Austin, and she says that you should not mind faded forest or silent fields. Now here, faded forest and silent fields refer to the place where her brother is at the moment, and he might be having a tough time at that place. So poetess tells the brother to ignore them, to ignore the faded forest and ignore the silent fields. As she says in the following line, that here is a little forest whose leaf is evergreen. Now here she is talking about home, where she is at the moment. As I told you in the beginning only, that the brother used to live in Boston, away from home. So the poet is saying that here we have our home, and home is home. Nothing can replace the calmness and peace and happiness and love that you get in your home. So poetess tells Austen to ignore the faded forest and silent fields, as she says that here is a little forest, here is our home. And it might be little, it might not be very big, but it is special because its leaf is evergreen. It will always be filled with calmness, peace and happiness and love and joy. तो पोएम की शुरुआत ही होती है ऐसी लाइन से, जो कि पोएम का टाइटल ही है, देयर इज़ अनदर स्काई एवर सीरीन एंड फेयर। यहाँ पे पोइटेस अपने भाई को, जिनका नाम ऑस्टिन है, मैंने पहले ही बताया कि वो बॉस्टन में रह रहे थे उस वक्त जिस वक्त उन्होंने ख़त में ये पोएम उनके लिए भेजी। वो कह रही हैं कि देयर इज़ अनदर स्काई। यहाँ पे अनदर स्काई का मतलब होता है कि आगे, जो हम हिंदी में कहते हैं ना, आगे आसमान और भी है। ये दुनिया का खात्मा नहीं है। यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि उनका जो भाई है शायद बहुत स्ट्रगल कर रहा है या बहुत डिफ़िकल्ट टाइम बिता रहा है बॉस्टन में। तो उनको एनकरेज करने के लिए पोएटेस कहती हैं कि देयर इज़ अनदर स्काई, इट इज़ नॉट द वर्ल्ड। जहाँ पे तुम हो वो दुनिया का खात्मा नहीं है, या जो भी टाइम आप इस वक्त बिता रहे हो वो दुनिया का या ज़िंदगी का अंत नहीं है, बल्कि और भी आसमान है, आगे और भी अपॉर्चुनिटीज़ है जो लाइफ हमको देगी। वो बताती है, वो कहती है कि देयर इज़ अनदर स्काई। यहाँ पे स्काई का मतलब होता है एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़। ज़िंदगी हमें खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है। वो कहते हैं कि जो आसमान है, अनदर स्काई, ये एक सीरीन है, फेयर है, बहुत काम है, बहुत उम्मीदों से भरा हुआ है, बहुत खुशहाली से भरा हुआ है। वो कहती है कि यहाँ पे सनशाइन है, यहाँ पे उजाला है, यहाँ पे सूरज की रोशनी है। यहाँ पे इसका मतलब है कि ज़िंदगी का उजाला है। फोर्थ लाइन में वो कहती है कि दो इट बी डार्कनेस देयर, जहाँ पे तुम हो सकता है वहाँ पे तुम्हें सब कुछ तुम्हारी मुश्किल हालातों की वजह से डार्क लग रहा होगा, अंधकार लग रहा होगा, अंधकारमय लग रहा होगा, डार्कनेस दिखाई दे रहा होगा, बट पोइट कहती है कि उसे इग्नोर करो, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। वही सब कुछ ज़िंदगी नहीं है, बल्कि ज़िंदगी बहुत सारी खुशहाली से और उजाले से भरा हुआ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ से भरी हुई है। आगे की लाइनों में वो कहती हैं कि नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट ऑस्टिन, नेवर माइंड साइलेंट फील्ड्स। इस लाइन में वो अपने भाई को उनके नाम से पुकारते हुए कहती है कि ऑस्टिन, ये जो फेडेड फॉरेस्ट है, ये जो बुझे हुए फॉरेस्ट है, जंगल है, और ये जो साइलेंट फील्ड्स है, बहुत उदास और बहुत खामोश जो मैदान है, इन सब को आप इग्नोर करो। इन सब की वजह से आप अपना दिल मत बैठाओ, अपनी उम्मीदें मत खो दो।
क्योंकि यही सब कुछ नहीं है। इन सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर दो, क्योंकि आगे की लाइनों में वो कहती हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन है, एक छोटा सा फॉरेस्ट है। यहाँ पे लिटिल फॉरेस्ट का मतलब होता है उनका घर। ऑफ कोर्स वो अपने घर से दूर है, तो पोएटिस उन्हें इनकरेज करते हुए यही बताती है कि यू आर नॉट अलोन, और वेर यू आर इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वॉट यू आर फेसिंग इज़ नॉट एवरीथिंग दैट यू हैव, इट इज़ नॉट द एंड। वो बोल रही हैं कि ये सारे जो मुश्किल हालात जो आप देख रहे हो, आप उसे इग्नोर करो, और यहाँ पे एक छोटा सा जंगल है, छोटा सा गार्डन है। ये भले छोटा हो, लेकिन इसके जो पत्ते हैं वो एवरग्रीन है, वो हमेशा खिले रहने वाले हैं। यहाँ पे उनका मतलब है कि जो घर होता है वो हमेशा किसी के लिए भी उम्मीदों से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ, प्यार मोहब्बत से भरा हुआ होता है। घर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है, अपने घर जैसी बात कोई नहीं होती है। तो वही पोएटिस अपने ब्रदर से कह रही है कि यहाँ पे एक छोटा सा फॉरेस्ट है जिसके पत्ते हमेशा एवरग्रीन रहेंगे। Here is a brighter garden where not a frost has been. In its unfading flowers, I hear the bright bee hum. Preeti, my brother, into my garden come. So in the second stanza, poetess continues to describe the brighter garden which is their home. She compares their home to an evergreen garden that never faced frost. Its flowers never fade, and in this garden she hears the bright bee hum, which means the songs of happy times. So the poetess pleads with her brother to come back to home, to come back to this evergreen garden. So second stanza में भी poetess ब्राइटर गार्डन को ही डिस्क्राइब करती है, कंटिन्यू करती है उसके बारे में बताते हुए। ब्राइटर गार्डन का मतलब होता है उनका घर। तो वो कहती हैं कि ये जो गार्डन है, ये छोटा सा जो गार्डन है, ब्राइटर गार्डन है, ये बहुत खिला हुआ है, इट इज़ एवरग्रीन, और यहाँ पे कभी भी फ्रॉस्ट नहीं आया है। यहाँ पे कभी भी ये गार्डन कभी भी उजड़ता नहीं है। इसके फ्लावर्स जो है हमेशा खिले हुए रहते हैं, वो कभी भी झड़ते नहीं हैं। और इस गार्डन में वो उसको सुनाई देती है ब्राइट बी की हमिंग की आवाज़, खूबसूरत सी आवाज़। यहाँ पे हम मान सकते हैं कि शी इज़ टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग्स ऑफ हैप्पी टाइम, कि अच्छे वक्त यहाँ पे गुजरता रहता है, यहाँ पे हंसी खेलने की आवाज़ें आती रहती है। आखिर में पोएटिस अपने भाई को विनती करती है कि प्लीज़ ब्रदर कम इन टू माई गार्डन, कम बैक टू आवर होम, बिकॉज वी आर देयर एट आवर होम एंड वी आर वेटिंग फॉर यू। इट इज़ आवर होम फिल्ड विथ लव फॉर यू। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिस्टरली लव एमिली डिकिंसन का अपने भाई के लिए, कि वो कितनी लविंग है, कितनी केयरिंग है और कितनी पॉजिटिव है अपने ब्रदर को लेके। वो चाहती हैं कि उनके भाई को ज़रा भी तकलीफ़ ना हो, और वो जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स वो शायद फेस कर रहे होंगे वो उसे भी दूर कर देना चाहती है। और वो आखिर को विनती करती है कि मेरे भाई आप यहाँ पे वापस आ जाओ। सो दिस वॉज द पोएम देयर इज़ अनदर स्काई। नाउ लेट अस क्विकली समराइज वट एवर वी हैव लर्नड बाय फार। As we saw, the poem There Is Another Sky is a short, simple, and an inspirational poem written by Emily Dickinson for her brother Austen. The poetess encourages her brother to never lose hope or be sad under any circumstances. The poetess wants the brother to look at the brighter side of life, and she finally pleads him to return to home, which is like a garden that is evergreen. तो हमने देखा कि कितनी छोटी सी, प्यारी सी और सादगी और प्रेरणा से भरी हुई ये पोएम है देयर इज़ अनदर स्काई, एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखी हुई अपने भाई के लिए। लेकिन ये पोएम हम सबको भी प्रेरित करती है, हम सब के लिए भी मैसेज देती है कि हमें कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानना है। ज़िंदगी हमेशा चुनौतियों से, हमेशा चैलेंजेस से भरी हुई होती है, लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है। वही किसी भी चैलेंज में अटक के हमें हार नहीं मानना होता है, हमें उम्मीद नहीं खोना होता है, और पॉजिटिव रह के हम ब्राइटर साइड की तरफ देखकर पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड की वजह से हम हर चैलेंज को, हर चुनौती को जीत सकते हैं। So this was the poem There Is Another Sky. I hope you understood everything and enjoyed learning with me. If you did, give this video a thumbs up, share among your friends and subscribe to the channel. Thank you very much.